So dear students, I am once again back with you with yet very important topic, yet another very important topic that we call as work, energy and power. Now you will basically think that I call each of these topics to be very important, but let me tell you that we are discussing very basic physics, and unless these very basic concepts are not clear, then the further studies of physics will become very difficult, and hence I am calling each one of them as important. तो देखिए, विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, व्हाट इज वर्क? नॉर्मल लाइफ में हम वर्क के कंसेप्ट को काफ़ी यूज़ करते हैं. हम कहते हैं मैंने आज बहुत काम किया एंड आई एम एग्जॉस्टेड, आई हैव नो एनर्जी. हम लोग भी इस बात को समझते हैं कि जितना ज़्यादा हम वर्क करते हैं उतना ज़्यादा हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. इसका मतलब वर्क और एनर्जी का बहुत रिलेशन है. फिर हम कहते हैं इस बाइक की बहुत पावर है, बड़ी पावरफुल बाइक है. तो हम जानते हैं अगर पावरफुल बाइक है तो जल्दी से स्पीड अप हो जाती है, मतलब तुरंत उसकी स्पीड ज़ीरो से किसी वैल्यू तक चली जाती है. जो कम पावरफुल बाइक्स हैं या कार्स हैं उनको बहुत धीरे धीरे स्पीड अप होती हैं. फिजिक्स में भी यही नोशंस हैं, बट उनका एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है. सो दीज टॉपिक्स बेसिकली आर वेरी मैथमेटिकल एंड वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ मैथ्स टू डिफाइन वर्क. यू कैन नॉट से वर्क जनरली. तो अगर इफ आई से दैट आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, then there has to be a certain meaning to that. So mathematically speaking, what is the meaning of work? Let me talk about this. So to speak mathematically, work is defined as the product of force and displacement. Work is defined as the product of force and displacement. अब इसमें important बात ये होती है कि जो force और displacement है उनमें एक डायरेक्शनल रिलेशनशिप होनी चाहिए. मीन्स when I am saying force and displacement, we should say that the product of force into displacement in the direction of force. So for example, if there is, let us say, a force acting in this particular direction, then to find its work I will multiply with the value of displacement. Suppose I call displacement as S. S is some number. Then I will say work is equal to force into displacement. So the displacement which is multiplied has to be in the direction of force. मतलब अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि force ऐसा लग रहा है आपका displacement ऐसा है इस direction में perpendicular. इस केस में अगर जैसे perpendicular हो जाते हैं there is no work involved. So in physics we say that a force, if it is displacing something in its own direction, अपनी ही दिशा में अगर किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर रही है, then it is doing some work, otherwise no work is being done. Just remember this. So I will explain it deeper when I go to a higher level physics, a little more advanced physics when I discuss. But for your level it is enough to understand that force multiplied with displacement in the direction of force is work. So let me write it in words. Work is the product force multiplied with the value of displacement in the direction of force. In the direction of force. यानी फोर्स की डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको जब हम फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई गेट वर्क. फॉर एग्जांपल, अगर एक 50 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है और उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर्स है, तो 50 into 3 is 150. सो दिस 150 जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क. 150 जूल इज द वैल्यू ऑफ वर्क. यहाँ पे 150 तो वैल्यू आ गया, जूल क्या आ गया उसका यूनिट. तो याद रखिएगा जो वर्क का यूनिट है मेरा, work or energy, both of them have a unit which is called as J, joule. Actually energy का एक यूनिट और होता है जिसको हम कैलोरी भी बोलते हैं, इन पर्टिकुलर हीट एनर्जी, बट जनरली आप कह सकते हैं दोनों का यूनिट जूल होता है क्योंकि जूल और कैलोरी आपस में इंटरकन्वर्टिबल है. तो पहला कंसेप्ट मेरा हुआ वर्क विच इज रिलेटेड टू द फोर्स एंड
the motion produced by force, because motion means displacement. Whenever something is moving, it is having displacement. तो वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में ही होना चाहिए, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए. और अगर डिस्प्लेसमेंट किसी और एंगल पे हो रहा है, जैसे इट्स नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बट एट सम एंगल, then we will see how we calculate force. So I will discuss it a bit later. So here light is bit fluctuating, but I hope you are following my words. दूसरी बात, अब हम एनर्जी की बात करेंगे, तो आप याद करिए रखिएगा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, that work done may be either positive or negative. मैं क्या बोल रहा हूँ, work done can be positive or negative. इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, work can be positive और नेगेटिव. तो फिर से मैं इसको थोड़ा हायर फिजिक्स में देखूंगा. मैं यहाँ पे टीयर्स क्रिएट करूंगा, मतलब जैसे ये बेसिक लेवल है, देन टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3. सो टीयर 3 से इज IIT एडवांस्ड और मेंस, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग फंडामेंटली. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट वर्क कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अकॉर्डिंगली इफ द वर्क इज पॉजिटिव देन वी से इट इंक्रीजेज एनर्जी. हम क्या कहेंगे, जो पॉजिटिव वर्क है it increases energy. और यहाँ पे जब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो एनर्जी भी मेरी दो फॉर्म्स की होती है जो मैं आगे बताऊंगा. बट यहाँ पे जब वर्क एनर्जी को इंक्रीज करता है, तो उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. सो पॉजिटिव वर्क इंक्रीजेस एनर्जी, पॉजिटिव वर्क इंक्रीजेस एनर्जी. एंड if you compare with that the negative work, अगर वर्क नेगेटिव वर्क होता है वो क्या करेगा आपका, it decreases energy, it decreases energy. And again when I am talking of energy, here again I am talking of kinetic energy. So इसको बहुत सिंपली आप ये समझ सकते हैं, जैसे मैंने इसको धक्का दिया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, मैंने इसको धक्का दिया, क्या आएगा इसमें, मोशन आएगा. मोशन इन फिजिक्स इज डिनोटेड बाय काइनेटिक एनर्जी. जितना तेज कोई चीज़ चल रही होती है, जितना मास होता है उसका, उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है. तो हम कह सकते हैं अगर मैंने इसको धक्का दिया तो, और मैं इस पर अगर धक्का देके लगाता ही चला गया फोर्स, तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग बेसिकली. और अगर कोई चीज़ चल रही है, जैसे एक ब्लॉक को आपने हिट कर दिया, वो ज़मीन पर जा रही है, तो थोड़ी देर में वो रुक जाती है. क्यों रुक जाती है, वो इसलिए रुक जाती है कि उसका मोशन एक फोर्स रेजिस्ट करती है, उसका मोशन एक फोर्स रेजिस्ट करती है, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं. तो जो रेजिस्टिव फोर्स है, रोकने वाली जो फोर्स है, दैट बेसिकली डिक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी. सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स इंक्रीज इन स्पीड, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स डिक्रीज इन स्पीड. सो इफ देयर इज अ पॉजिटिव वर्क विच इज हैपनिंग ऑन सम ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्क तो किसी ऑब्जेक्ट पर ही होगा, it will increase the kinetic energy, and negative work will decrease the kinetic energy. So here I am talking in very rough terms at your level, because if I talk advanced concepts, it will be incomprehensible to you, you won't be able to understand. So very basically I am telling that positive work increases and negative work decreases kinetic energy. Now work or energy I have directly related in this particular lecture, and I will also tell you that when we speak of energy, this is always created by work, either created or destroyed by work. Destroyed in case of negative and enhanced in case of positive. Now energy, if we talk of energy, again here I will say that one is your kinetic energy and another one is the potential energy. So this is kinetic energy and the other one is potential energy. तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द मोशन. इफ समथिंग इज मूविंग फास्ट देन इट हैज काइनेटिक एनर्जी. सो दिस एनर्जी इज रिलेटेड टू मोशन एंड दिस एनर्जी इज रिलेटेड टू पोजीशन. सो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट में, दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी. और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी. और दो ही टाइप्स की फंडामेंटल एनर्जीज होती हैं. सो आप देखेंगे तो वर्क से सबसे पहले क्या क्रिएट होती है, काइनेटिक एनर्जी. और अगर किसी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो फिर किसी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है एक दूसरे वर्क से. तो यहाँ पर भी क्या होगा,
वर्क काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा है बट इसमें क्योंकि ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं, so I am taking some time. So I have explained you work, I have explained you energy, in particular kinetic energy, and another form of energy which I call as potential energy, which is by virtue of position. By virtue of motion the energy is kinetic energy, by virtue of position it is potential energy. Last thing, what is power? So power again we will define as the rate of doing work. Power is defined as the rate of doing work. ये फिर से मैथमेटिकल कंसेप्ट हो गया, इसमें मैथ्स बहुत है इसलिए मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ। रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स हाउ फास्ट द वर्क इज हैपनिंग, हाउ फास्ट द वर्क इज हैपनिंग। और इसको आप अगर एनर्जी के टर्म्स में कहेंगे, क्योंकि वर्क क्या करता है, तो एनर्जी को क्रिएट करता है या डिस्ट्रॉय करता है। सो आई शुड से दैट हाउ फास्ट द एनर्जी इज चेंजिंग, हाउ फास्ट द एनर्जी इज चेंजिंग। कोई चीज़ बहुत जल्दी से मोशन में आ जाती है तो पावर ज़्यादा है, धीरे धीरे अगर मोशन में आती है तो पावर कम। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर एंड वर्क इज क्लोजली रिलेटेड टू एनर्जी। और वर्क होता कब है, जब एक फोर्स हमारी, जिसको हम एफ कह रहे हैं यहाँ पे, वो कोई डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करती है अपनी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं, अपनी डायरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चला जा रहा है और उस पर एक फोर्स वेट नीचे को लग रहा है जो कि सपोर्टेड है, तो ये वेट क्योंकि उसके परपेंडिकुलर है मोशन के, ये कोई वर्क नहीं करेगा। सिर्फ वही फोर्स वर्क करेगी जिसके साथ डिस्प्लेसमेंट या तो डायरेक्शन में हो या एक एंगल बनाए। उस एंगल का रिलेशन हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, इस लेक्चर में उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। तो वर्क, एनर्जी और पावर के मैंने आपको थोड़े थोड़े से कंसेप्चुअल पॉइंट्स दिए हैं, तो आप बार बार रिवाइंड करके 2-3 बार समझिएगा, तो फिर हम इसके टीयर 1 में इसके बारे में और समझेंगे। Thank you very much for watching this video. Keep continue to watching.